Hello everyone, my name is Mukul and I welcome you all to my YouTube channel Grammatical by Mukul. So if you are new here, then please subscribe to my YouTube channel so that you can never miss an update. Okay, so moving forward in this video, I will tell you about the PPDT and OIR test, why they are important and how you can clear them in very first attempt. But before telling you about the PPDT and OIR test, I must tell you about the screen-in process. Yes, this screen-in process is very important because the PPDT and OIR test is a part of this screening process, and this screening process in turn is a very first process in the 5 days interview process. Okay, if you clear this screening process, then only you are allowed to stay there for the next 5 days, and you can take the psychology, personal interview and GTO test. But if you do not clear this screening process, then I am afraid you have to return to your home then and there. The SSB board will not going to entertain you any further. Okay, so this screening process is very crucial. Okay, suppose if you clear the screening process, then you are allowed to take these tests and then you can prove your potential. Okay, if you miss some point in GTO, then you can try in interview and you can try in psychology. But if you stuck in the screening process and if you are not able to clear this screening process, then everything will be finished. You are out there and then. So screening process is very important. Okay, so moving forward in this video, I will tell you about how to take this PPDT and OIR test and what are the mistakes that you must avoid to clear these tests in very first attempt. Okay, so without wasting any more time, let's start this video. So students, here is a complete flow chart that in the SSB interview, first process is this screening process and it contains PPDT plus OIR test. This PPDT is picture perception and description test, and OIR test means officers intelligence rating. I will explain these two in detail. Okay, then if you clear this screening process, then you will go through these psychological tests, personal interview, GTO, and if you are selected in this, then after the conference, once you clear the conference, then you go through the medical test, and after clearing the medical test, then there will be a final cutoff, and if you clear this final cutoff, then you are eligible to join the respective academy, maybe IMA, OTA, etc. And okay, and after your passing out parade, then you know the further. Okay, then joining and other processes. So let's talk about this screening process in detail. Okay, PPDT, picture perception and description test, plus OIR test. Okay, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार इन्हें क्लियर कर लिया तो आपके पास पूरे 5 दिन होंगे अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए, अलग अलग टेस्ट के थ्रू, साइकोलॉजी टेस्ट या इंटरव्यू या जीटीओ। अगर आप किसी एक टेस्ट में कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं, आप अपना उतना अच्छा नहीं दे पाते, तो आपके पास और चांसेस हो गए उसे इंप्रूव करने के। बट अगर आपने स्क्रीन इन यहां पे गड़बड़ कर दी और आप स्क्रीन इन नहीं हो पाए, तो सारी कहानी ही खत्म। आपको वहां से वापस आना होगा, दोबारा से पूरी प्रोसेस रिपीट करनी होगी। अब आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। आप देखिए कि जो क्रिकेट के बहुत बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, आप सोच के देखिए कि अगर वो अपना स्क्रीनिंग ना पास कर पाते तो क्या वो आज इतने सारे रिकॉर्ड्स बना पाते। समझने के लिए कि मान के चलिए उन्हें एक मौका दिया गया है, उनका कोई ओपनिंग मैच है, कोई डेब्यू मैच है, और उस ओपनिंग मैच पे वो 0 पे आउट हो गए। वो बहुत टैलेंटेड है, उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वो बहुत कैपेबल है, वो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी स्किल है। बट अगर वो अपने डेब्यू मैच में 0 पे आउट हो गए तो क्या उन्हें आगे खेलने का मौका दिया जाएगा? नहीं। उसी तरीके से अगर आप भी स्क्रीनिंग नहीं हो पाए तो चाहे आपके अंदर कितने भी टैलेंट हो, कितने भी पोटेंशियल हो, कितना आपने साइकोलॉजी, आपने पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपेयर की है, जीटीओ प्रिपेयर किया है, कुछ भी मायने नहीं रखेगा, आपको वहां से तुरंत निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम स्क्रीनिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो देखिए, स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है
वो आपकी पहले दिन ही होगी। जो आपका 5 डे इंटरव्यू है, 5 डे इंटरव्यू, उसमें फर्स्ट दिन, पहले ही दिन जाते ही आपका स्क्रीन इन होगा। अब देखिए मैं स्क्रीन इन को बता देता हूं आपका। स्क्रीन इन प्रोसेस के अंदर क्या है, पीपीडीटी प्लस OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा, एक हॉल में आपको ले जाया जाएगा और उस हॉल के अंदर क्या है, बहुत सारी सीट्स होगी, आपको वहां पे बैठा दिया जाएगा अकॉर्डिंगली, और आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब वो पिक्चर जो होगी वो बहुत ब्लर होगी, बहुत ही ज्यादा ब्लर होगी, और अराउंड 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अराउंड आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद 1 मिनट समथिंग का आपको टाइम दिया जाएगा उसके ऊपर सोचने के लिए, और देन 3 से 4 मिनट फिर आपको दिए जाएंगे कि उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, अपने पूरे कैरेक्टर लिखने हैं, पूरी स्टोरी लिखनी है। तो अभी मैं आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं कि आपको किस किस तरीके से लिखनी है, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आप किस तरीके से वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, इन नहीं हो पाते। ठीक है, तो आपको एक रीजनेबल सी स्टोरी लिख लेनी है, ठीक सी स्टोरी। उसके बाद में आपसे वो पेपर ले लिया जाएगा। देन उसके बाद में आपका OIR टेस्ट भी वहीं पे हो जाएगा, है ना। OIR टेस्ट मतलब इसके अंदर क्या है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल, तो वो डिपेंड करता है किस बोर्ड में जा रहे हो, कितने वो क्वेश्चन पूछेंगे, कितना वो आपको टाइम देंगे, वगैरह वगैरह। तो आपका ये भी चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद में 15 से 20 मिनट बाद में होगी आपकी जीडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी जीडी होगी किसके बेस पे, इस पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बेस पे आपकी जीडी कंडक्ट कराई जाएगी। अब देखिए फ्रेशर का ग्रुप अलग बन जाता है स्टार्टिंग में, और रिपीटर्स का ग्रुप अलग बन जाता है। लेट्स से आप एक फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मतलब, तो जीडी के अंदर आपका 10 बच्चों का मान के चलिए ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस में आपको बैठा दिया जाता है। यहां पे जो है एग्जामिनर्स होते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, ऑफिसर्स होते हैं जो देखते हैं आपका जीडी, है ना, आपको एसेस करेंगे। अब देखिए जीडी के अंदर आपको 1 मिनट का इंडिविजुअल सभी को टाइम दिया जाएगा, सभी को 1 मिनट का टाइम, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो नरेट करनी होगी अपने एसेसर्स को। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 आता है यहां पे कि आप इस जो नरेट करेंगे स्टोरी को, उसको बहुत अच्छे से नरेट करना है आपको। जब आपने ये स्टोरी लिख ली, उसके बाद में जो बीच में 10-15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उसमें स्टोरी आपको बार बार रिवाइज करनी है। जो जो आपने स्टोरी लिखी है वो अच्छे से रिवाइज करनी है, ताकि जब आपको 1 मिनट का टाइम मिले तो आप फटाफट से इसको नरेट कर दे, बिना फंबल हुए, बिना बीच में अटके हुए, है ना। प्रॉपर इंग्लिश में आप अच्छे से, एक अच्छी वॉइस में, ताकि उनको सही से सुन पाए। आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए ना। तो आप इसको नरेट कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2, अगर आपने अच्छे से नरेट कर दिया तो आपका इंप्रेशन वहां पे बहुत अच्छा चला गया। पॉइंट नंबर 2, जब आखिरी बंदा नरेट करनी अपनी स्टोरी को नरेट करके खत्म कर देगा, देन स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए आपको खिचड़ी नहीं पकानी है कि मतलब आपको कंटिन्यू बोले ही बोले नहीं जाना है। आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए कि 10 मिनट की जीडी है, तो 10 मिनट की जीडी में आपको 4 से 5 बार आपको अपने कुछ पॉइंट्स रखने हैं। लेट्स से कोई 10-15 सेकंड का पॉइंट आप रखें, फिर चुप हो गए, उसके बाद में फिर 10-15 सेकंड के लिए आप बोले, फिर चुप हो गए। तो आपको 4 से 5 बार जीडी के अंदर बोलना है। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो आपके खिलाफ चला जाएगा, आपका रिजेक्शन बहुत ज्यादा इमिनेंट हो जाएगा। और अगर आप बोलते ही रहेंगे, कंटिन्यू चुप ही नहीं रहेंगे, तो वो भी आपके खिलाफ ही जाएगा कि भाई इस बंदे में सुनने की कैपेसिटी है ही नहीं, है ना। तो आपको ये दोनों नहीं करना है। दूसरा, ये 2 पॉइंट हो गए। देन तीसरा पॉइंट अब हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्या असेस करते हैं व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, कि वो स्क्रीन इन स्क्रीन आउट हो, वो है कि उसकी सोच कैसी है, उसने सोचा क्या है। देखिए अब जो ये स्टोरी होती है ना, ये स्टोरी एक तरीके से कंपैरेटिवली ब्लर होती है। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है आपका टैट साइकोलॉजी के अंदर, वहां पे तो फिर भी आपको स्टोरी थोड़ी विजिबल होती है, बट पीपीडीटी में ये बहुत ज्यादा ब्लर होती है। तो आपको मोर और लेस इमेजिन ही करनी होती है एक स्टोरी। तो आप देखिए, आपको कोई नेगेटिव स्टोरी इमेजिन नहीं करनी है ना। अपने आप से कुछ कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी खराब चीज कह लीजिए, वो इमेजिन नहीं करनी है जबरदस्ती। क्यों? इससे जो साइकोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है ना, इससे जो साइकोलॉजिस्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट ये असेस करना चाह रहे हैं पहले ही, मतलब आपसे मिलते ही, कि इस बंदे का सोचने का क्या तरीका है। देखिए
साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं की जा सकती, है ना। साइकोलॉजी को चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिजिकल इंटरव्यूज कह लो या आप जीटीओ वगैरह में कुछ ऐसे फिजिकल टास्क है जो थोड़े बहुत चेंज हम कर सकते हैं, बट साइकोलॉजी व्यक्ति की फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति ना हम ले लें जिसकी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है, मतलब जो किसी चीज के अंदर जबरदस्ती नेगेटिव ढूंढता है। यू गॉट माई पॉइंट, कि आपको जबरदस्ती कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है ना। मतलब जीडी के दौरान भी आपको कुछ ऊट पटांग या कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलना है, आपको थोड़ा पॉजिटिव साइड ही रहना है, जिससे कि इन पे इंप्रेशन जाए जो एसेसर्स हैं कि हाँ भाई इस बंदे की जो साइकोलॉजी है वो एक तरीके से पॉजिटिव है, डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं बताने हैं। ठीक है, तो पहली तो चीज ये रही। ठीक है, तो ये तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ ओवर पॉजिटिवनेस ज्यादा थोपनी है ना। ओवर पॉजिटिवनेस भी आपको ज्यादा नहीं थोपनी है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति क्या होता है कि सीन तो कुछ ऐसा होता है कि उसने स्टोरी क्रिएट कर दी कि जिसमें थोड़ी फाइटिंग हो रही है, वॉर का सीन है या कोई लड़ाई का है, रोड एक्सीडेंट का सीन है, बट उसके अंदर वो जबरदस्ती कोई पॉजिटिव चीज ठूस रहा है, मतलब अननेसेसरली। तो इसे बोलते हैं एस्केपिस्ट टेंडेंसी, कि आप उस पर्टिकुलर सीन से एस्केप करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये दो समझने वाली बात है कि आपको अननेसेसरी उसमें नेगेटिव चीज नहीं घुसेड़नी है, और आपको बिना जरूरत के या अननेसेसरी बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं लाना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैंने देखा है मेरे साथ वाले बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से स्क्रीन आउट हुए कि मतलब वो अननेसेसरी उसमें नेगेटिव पॉइंट्स ला रहे थे अपनी जीडी के टाइम पे, और मुझे लग गया था कि भाई इस नेगेटिव पॉइंट्स के साथ तो एसेसर आपको नहीं लेने वाले, तो वो आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है पीपीडीटी के अंदर कि आप यहां पे अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं स्क्रीन इन होने के। ओके, और ओआईआर टेस्ट को इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट अगर आप एक ऑरेंज कलर की बुक आती है ओआईआर, है ना, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपका अच्छा एक तरीके से वर्बल नॉर्मल रीजनिंग प्रिपेयर हो जाएगी। तो ओआईआर की ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। ठीक है, दूसरा आप अपनी जीडी पे फोकस कर सकते हैं ना, जीडी पे, कि ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से करेंगे। अगेन मैं आपको प्रॉपर सारा वे नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। एटलीस्ट आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई 4-5 बंदों के बीच में बैठ के आप 10-15 सेकंड के लिए कुछ अपना पॉइंट रख सको एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को सही से कर लोगे तो आपके जो स्क्रीन इन होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप एक बार स्क्रीन इन हो गए, देन स्क्रीन इन के बाद में आप 5 दिनों के लिए एसएसबी बोर्ड में ही रहोगे, और फिर आपका साइकोलॉजी, आपका जो है इन पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ कंडक्ट होगा। उसके बाद फिर 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, देन फिर वहां पे डिसाइड होगा कि भाई आप रिकमेंड हो रहे हो नहीं हो रहे हो। बट कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि स्क्रीन इन किया जाए, है ना। तो स्क्रीन इन अगर हो गए तो आप 5 दिन रुकेंगे, बट अगर आज स्क्रीन आउट हो गए तो उसी दिन आपको अपना बोरिया बिस्तर गोल करके घर पे वापस आना होगा। देन अगेन आपको कोई रिटर्न टेस्ट या जो भी टेस्ट है वो देना होगा, फिर पूरी प्रॉपर एसएसबी प्रोसेस से गुजरना होगा। तो मैं ये बताऊंगा कि स्क्रीन इन प्रोसेस जो है एसएसबी प्रोसेस में, 5 डेज एसएसबी प्रोसेस के अंदर स्क्रीन इन इज द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा बहुत अपना स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जीडी की भी आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, है ना। और ओआईआर की आप चाहे तो बुक परचेज कर सकते हैं, नहीं तो वर्बल नॉर्मल रीजनिंग आप नॉर्मली कहीं से भी सीख सकते हैं। तो अगर आप इतना मेक श्योर करेंगे तो आपका स्क्रीन इन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखिए, अगर आप फ्रेशर है ना, तो फ्रेशर के लिए स्क्रीन इन होना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि वो पहली बार प्रोसेस में आया है। तो इन व्यक्ति को भी पता है कि भाई वो पहली बार व्यक्ति आया है, और थोड़ा हेजिटेंट होना या प्रोसेस से अनअवेयर होना, नर्वस होना लाजमी है। बट अगर आप रिपीटर हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है ना। तो स्क्रीन इन प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन इन के अंदर पीपीडीटी, ओआईआर टेस्ट, और देन आपकी इसी से रिलेटेड होती है जीडी की प्रोसेस। आपको इन पे जो है ध्यान रखना है और आप स्क्रीन इन हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई स्क्रीन इन प्रोसेस की। तो आई होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी। तो अब मैं नेक्स्ट में जो है आपको जो जीटीओ और इंटरव्यू और ये जो साइकोलॉजी होती है, इनको डिटेल में 1 बाय 1 सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल में बता दूंगा कि इनमें क्या क्या टास्क होते हैं, और उस टास्क को
अप्रोच क्या होती है आपकी कि आप उस टास्क में बिना गड़बड़ी करे उसे अच्छे से क्लियर कर ले, है ना। आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियोस में आपको कैटेगोरिकली अलग अलग करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसी वीडियो के साथ आगे भी। तब तक के लिए गुड बाय।